हजारों किलोमीटर दूर जहाँ तीन समुद्र मिलते हैं, जहाँ हवा में नमक है और हर लहर एक कहानी सुनाती है, उस जगह का नाम है रामेश्वरम। लेकिन हम यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते। हम यहाँ आते हैं ये याद करने कि दूरी चाहे कितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बिहाइंड मी इज द सी और अभी हम हैं पवन ब्रिज पर। दिस ब्रिज इज ऑलमोस्ट 111 years old. Where are you coming from? You'll be going back today? Tomorrow. Even tomorrow I'll go back. I'm just planning out whether I should go to Pondicherry and then back to Bangalore or I go back. I just have a day. Plan out for Leh Ladakh. It's a very once in a lifetime you should do at least. It is the time constraint that won't be done. Time you have to, like, the age will move on, right? Then you won't get time. Take a flight directly to Leh. Yeah. So You I get come- good bikes also, like you get only Himalayans or You got every bike, whatever Everything. you call it. Whichever you wanted, Thar, bikes, whatever things you want an open gypsy, you can get anything. then it's fine. You plan well in advance. In that case, what happens is you get a good airfare also, right? Yeah. And do plan between April or August end is the best. Less of tourists before winter. September onwards they close out. So basically by August, April till August. that Spiti is- you can do anytime. Chalo, nice meeting you. So we have Mr. Murli from Bangalore. So they've come on a family trip to. Hello, how are you? Hi. He got scared. How many times you come here before? Many times. This is first time for me. Okay. We came as a family to both the families. It's good to get in time whenever you can squeeze in, right? Yeah, exactly. Nice. Nice, sir. Thank you, nice. Thank you, sir. तो ये देखो रेल ट्रैक वाला जो ब्रिज है वो ओपन हुआ हुआ है. नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ ओपन. दिस इज़ टू लेट द जितनी भी आपकी बोट जो शिप्स है ना, शिप क्रॉस करेगा, इसके लिए ये ओपन किया हुआ. हाँ, the other one gets entirely pulled up. So fishermen help in lifting the bridge. आप देखो भी सभी लोग आगे यहाँ पे हेल्प करते हैं, फिर जाके जो ओल्ड ब्रिज है वो ओपन होता है. Per head 300 rupees per hill. They get 300 rupees only. Per head. But they are going to 11 o'clock. They are returning to 4 o'clock. It's very hot sun. Yeah, it is hard. And moreover, being very old, it requires a lot of effort, right? कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ दो जगहों को नहीं जोड़ते, वो सपनों को हकीकत से जोड़ते हैं. समुद्र के बीच हवाओं से बातें करता ये पंबन ब्रिज हर मुसाफिर को एक बात याद दिलाता है, मंजिल खूबसूरत हो या ना हो, सफर यादगार होना चाहिए. जब पहली बार आप पंबन ब्रिज को देखते हैं तो समझ आता है कि कुछ नज़ारे कैमरे में नहीं सीधे दिल में रिकॉर्ड होते हैं, और ये उन्हीं में से एक है. Nihal, can you do me a favor here? Can you give me some clip for this opening and setting? Okay. Actually, I just have one day.
Finally, we've reached Rameshwaram. Next room. Just coming. हर रास्ते की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर मंजिल नहीं, एक एहसास मिलता है। यह है धनुषकोडी, भारत की आखिरी सड़क। इसके आगे सड़क नहीं है, सिर्फ समुंदर ही समुद्र, और शायद इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, यह देखने नहीं कि रास्ता कहाँ ख़त्म है, बल्कि यह समझने कि हौसलों की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। यहाँ पहुंचकर लगता है कि कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, खुद को खोजने के लिए होते हैं। तो ये है धनुषकोडी। On three sides you have So we have Mr. Naman and Namrita from Bangalore. So they've come over to Dhanushkoti for a vacation. So here we are. So how are you finding it, sir? How is the area? It's good. It's good. Thing is, it's quite crowded. It's quite crowded. Yeah, that's true. So you've been to that ghost town also? Yeah, we've been to They've restructured it, right? No, it's the like same that. place. But
कभी यहाँ जिंदगियां बसती थी, आज सिर्फ खामोशी है। लेकिन कुछ जगहें लोगों के जाने के बाद भी अपनी कहानियां संभाल कर रखती हैं। धनुषकोटी का ये गोस्ट टाउन वक्त की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने हर साल हजारों लोग चले आते हैं, और आज हम भी उनमें से एक हैं। कभी यहाँ पूरा शहर बसता था, लेकिन 1964 में एक भयानक साइक्लोन ने सब कुछ बदल दिया। आज जो बचा है वो सिर्फ खंडर नहीं, वक्त की खामोश यादें हैं। हजारों साल बाद भी एक कहानी लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। शायद यही आस्था की सबसे बड़ी ताकत है। समुद्र वही है, हवाएं भी वही हैं। बदल गया है तो सिर्फ वक्त, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। राम सेतु शायद उन्हीं में से एक है। एंड दिस इज़ क्वाइट हैवी, पर वो तब भी सही में ये हैवी भी है। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वेरी लाइट, बट स्टिल इट फ्लोट्स इन वाटर। अभी हो गया है ना। कुछ लोग अपने घरों से नहीं, अपने विचारों से पहचाने जाते हैं। आज हम जा रहे हैं उस घर की ओर जहां से निकला था एक ऐसा सपना, एक बहुत ही बड़ा सपना, जिसने पूरे देश को सपने देखना सिखाया। यस, वी आर गोइंग टू द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस। डॉक्टर कलाम हाउस फिर हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम हाउस।
ये जो कुछ मोमेंट्स थे ये बिल्कुल बहुत ही मेमोरेबल थे पूरी राइड के। और उनके लाइफस्टाइल, द वे ही ग्रो अप, बहुत कुछ देखने को मिला। बट मेन इशू वाज कि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाज नॉट अलाउड। रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी मंदिर, जहां आस्था, इतिहास और सुकून एक साथ मिलते हैं।